Hello dear children, this is part second of chapter 3, that is the state government. So look at the results of 2012 Uttar Pradesh Assembly elections. In 2012, Samajwadi Party got maximum seats. They secured 224 seats and they won the election. Bahujan Samaj Party got 80 seats, Bharatiya Janata Party got 47 seats, Indian National Congress got 38 seats, other political party got only 14 seats. So total seats were 403, and out of 403, 224 was won by Samajwadi Party. So it clearly indicates that the majority party or ruling party will be the Samajwadi Party. So which party is called as the ruling party or majority party? The party which won or whose MLA won more than half the number of constituencies in the state. मतलब आधे से ज़्यादा सीट्स वो 50% सीट्स तो उन्हें जीतनी है, मतलब 51% सीट्स उनको एक्वायर करनी है, तभी वो जाकर मेजॉरिटी पार्टी या रूलिंग पार्टी बनेंगे. Or other party will be parties who are not in power, yeah, who do not attain much seats will come into opposition. So we can say the party with those parties who have not attained a majority will be the opposition party. जैसे बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, because they did not attain majority, that is why they will come in opposition. So their work will be that they will always analyze the ruling party whether they are doing work properly or not. अगर कुछ गलत करेंगे they will always say कि this action is not good, you can revert your action. तो अपना एक्शन आप सही कर सकते हो, इस पॉलिसी को इस तरीके से नहीं दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए. सो दैट इज द वर्क ऑफ ओपोजिशन. दे ऑलवेज यूज टू क्रिटिसाइज द रूलिंग पार्टी कि ताकि एक ट्रैक बना रहे. Other, we are having coalition government in one single party. When one single party they does not get a majority, so they have to make ally with other like-minded parties to form a government. Even अगर क्या होता है कोलिशन गवर्नमेंट में, जिस टाइम पे एक सिंगल पार्टी इलेक्शन तो जीत जाती है, पर अगर वो 51% वोट अटेन नहीं कर पाई है तो वो उसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हैंड्स ज्वाइन करने पड़ते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए. अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर 50% से कम वोट लाए तो उसको दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलना पड़ता है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. जीत जाती है पर गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैंड्स ज्वाइन करने पड़ते हैं. और इस तरह की गवर्नमेंट को हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, और हिंदी में बोलें तो गठबंधन की सरकार. ओके, सो नेक्स्ट इज गवर्नर. Governor is the nominal head of the state. He is appointed by the president for 5 years. So we can directly say that he is the representative of the central government who oversees the working of the state government. We can call him as the agent of the center. कि वो सेंटर का एजेंट है who is in the state. उनका काम है रेगुलरली रिपोर्ट देना टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, सो ही इज कॉल्ड एज द नॉमिनल हेड. वाई ही इज कॉल्ड एज नॉमिनल हेड? बिकॉज सारे के सारे काम जो है इन्हीं के नाम पर होते हैं. कोई बिल आएगा उसको गवर्नर जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक लॉ नहीं बनेगा स्टेट में, लेकिन उनको असेंट लेनी पड़ती है चीफ मिनिस्टर की. दैट इज वाई ही इज कॉल्ड एज द नॉमिनल हेड. नेक्स्ट इज फंक्शनरीज ऑफ अ स्टेट. रोल ऑफ गवर्नर. वी नो that state में function perform करने गवर्नर, chief minister, they play a various one of the most important role, speaker, they all are there to perform the functions of the state. So let's talk about the role of the governor. Ultimately governor क्या काम करता है? First of all, that governor is the nominal head of the state and is appointed by the president for a period of 5 years. इसको हम डिस्कस कर चुके हैं. Second point, the term can be extended or the governor can be removed any time by the president. Governor किसी भी टाइम पर उनका
टेन्योर चाहे, प्रेसिडेंट चाहे तो उनका टेन्योर एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं. Otherwise, if he is not, president is not satisfied with the working of the governor, he can remove him anytime. Third point, a governor is to the state and the president is to the nation. जैसे ही नेशन पूरे कंट्री के लिए प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, वैसे पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए गवर्नर की पोस्ट होती है. जैसे प्रेसिडेंट है वो फुल नेशन को बिलोंग करता है, गवर्नर इज फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट. तो कहीं ना कहीं उनकी पोस्ट सिमिलर है, बस जो क्राइटेरिया है उनका नेशनल लेवल पे है और उनका स्टेट लेवल पर है. फोर्थ पॉइंट, all bills passed by state legislature have to be approved and signed by the governor. अगर state legislature यानी legislative assembly अगर कोई law पास करती है, कोई bill पास करती है, बिल पास करती है, देन वो बिल अप्रूवल के लिए गवर्नर के पास जाता है. लेकिन जब तक मेजॉरिटी से चीफ मिनिस्टर जब तक अप्रूवल नहीं देते तब तक वो साइन नहीं कर सकते, तभी उनको नॉमिनल हेड कहा जाता है. ठीक है, सो कीप इट इन योर माइंड दैट all the bill passed by the state legislature have to be approved by chief minister but have to be signed by the governor. तो यानी कहीं ना कहीं पे अगर अप्रूवल देखें तो सिग्नेचर रिक्वायर्ड हमेशा गवर्नर के ही होंगे. यानी कोई भी बिल तब तक पास नहीं होगा जब तक गवर्नर उसके ऊपर अपने सिग्नेचर नहीं कर देते. Let's talk about the role of chief minister. Chief minister is the real head of the state. He is actually the head of the government. अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें, he is the head of the government. He advises the governor on the council of minister to be selected and their number. एक्चुअली जितने भी चीफ मिनिस्टर के साथ उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर अपॉइंट करते हैं. लेकिन किनको अपॉइंट करना है, किनको सेलेक्ट करना है, कितने होंगे, वो उनको चीफ मिनिस्टर खुद बताते हैं. ठीक है, अपॉइंटमेंट उनकी गवर्नर के हाथ में है, लेकिन सेलेक्ट कितने मेंबर्स होंगे ये चीज किसके हाथ में है, चीफ मिनिस्टर के. लेकिन अपॉइंटमेंट गवर्नर करेंगे. देन द चीफ मिनिस्टर असाइंस पोर्टफोलियो टू द मिनिस्टर्स एंड अपॉइंट्स अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर इफ रिक्वायर्ड. अब चीफ मिनिस्टर क्या है, अलग अलग पोर्टफोलियो, लाइक ही विल, जो भी पर्सन है अगर वो किसी को मिनिस्टर बनाते हैं उसका पोर्टफोलियो उसके साथ दे देंगे. लाइक ही विल बी द हेल्थ मिनिस्टर, ही विल बी द एजुकेशन मिनिस्टर, ही विल सी द रोड एंड हाईवेज का जो डिपार्टमेंट है क्या मिनिस्टर वो ये रहेंगे. तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे और ये देने का काम करते हैं चीफ मिनिस्टर, जो पोर्टफोलियो जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो प्रोवाइड करना. And if need arise, if there is a need of deputy chief minister, then he also appoints deputy chief ministers. Council of ministers including the chief minister cannot be more than 15% of the members of legislative assembly. जितनी भी legislative assembly होंगी 15% पार्ट जो होगा उसका council of minister और chief minister का होगा. मतलब पूरी की पूरी जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बन सकती. सिर्फ 15% मेंबर ही लेजिस्लेटिव असेंबली के दे कैन बिकम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी वो फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. वन इज कैबिनेट मिनिस्टर, सेकेंड इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड थर्ड इज डिप्टी मिनिस्टर. कैबिनेट मिनिस्टर वो मिनिस्टर्स हैं who can hold more than one or more portfolios and they are assisted by the minister of state or deputy minister. कैबिनेट मिनिस्टर्स वो है इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज अपने हाथ में रखी होती है, रेवेन्यू की, फाइनेंस की, इस तरह की मिनिस्ट्रीज इनके हाथ में होती हैं और होम मिनिस्टर रहते हैं. तो इनको असिस्ट किया जाता है, मतलब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं और डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं वो उनकी हेल्प भी करते हैं सारी फंक्शनिंग में. ठीक है, सो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स सारे इनको असिस्ट करते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स भी. सो ये हो गया आपका रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर. इन सबको ये याद रखना दैट चीफ मिनिस्टर इज द head of government and your governor is the head of the state.
Before telling you about the role of speaker, I would like to discuss with you that when MLA meet in the Vidhan Sabha or in Legislative Assembly, whenever they meet, all the MLAs get together at one place called as Vidhan Sabha or Legislative Assembly. They used to discuss lot of things regarding the state. Various debates goes on there. बहुत सारी डिसीजंस वहाँ लिए जाते हैं, जिसमें इंक्लूड करता है कि टैक्स को इंक्रीज करना है, आइटम्स का प्राइस राइज हो रहा है, प्राइस कम करना है, या पंचायत के रिगार्डिंग, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, or any problem which is going on in the society. All the problems of the state are discussed in the Legislative Assembly. So or important decisions are taken there, important discussion goes on there. एंड जो जिसकी देख रेख में सारा का सारा डिस्कशन हो रहा होता है, दैट जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के हेड होते हैं, दैट इज स्पीकर, वो है स्पीकर. सो वी हैव टू सी व्हाट इज द रोल ऑफ द स्पीकर. स्पीकर कोऑर्डिनेट्स दी डिस्कशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. सारी की सारी डिस्कशन जो एमएलए वहाँ बैठकर सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं, वो सारा स्पीकर की देख रेख में हो रहा होता है. ही विल सी व्हाट टू डिस्कस, हाउ मच टाइम हैव टू बी गिवन टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. एक मिनिस्टर को कितना बोलने का टाइम दिया जाए ताकि सबको किस तरीके से सब अपनी अपनी बात कह सके. सो ही विल कोऑर्डिनेट ऑल द थिंग्स. सेकेंड, Speaker's job is to ensure that everyone gets time to present their opinion and the MLAs listen to each other peacefully. ये स्पीकर का काम है कि वो हर एक को टाइम दे बोलने का, अपना ओपिनियन रखने का, बिकॉज ऑल आर रिप्रेजेंटेटिव. क्योंकि जितने भी एमएलए हैं, दीज आर रिप्रेजेंटेटिव्स. अब लोगों की बात तो पहुंचनी चाहिए ना. और दूसरे एमएलए जो हैं वो उनको ध्यान से सुने कि अल्टीमेटली ये एमएलए कहना क्या चाहते हैं. ठीक है, लोगों की क्या डिमांड है. It is up to the speaker to decide which issue could be discussed and in what order. So order भी स्पीकर ही डिसाइड करेंगे कि ये इशू यहाँ पर डिस्कस होगा या नहीं होगा. तो सारा का सारा डिसीजन जो वहाँ पे क्या डिबेट करनी है, किसके बारे में क्या बात होगी, बात करनी है नहीं करनी है, किस ऑर्डर में बात होगी, everything within the assembly will be decided by only speaker. So we can say that speaker is the head of the legislative assembly. When this procedure of lawmaking is over, then the law, then it comes to the implementation of law. So first of all, law is published in a book called Gazette, and it is sent to the government officials. Like I know आप में से भी कई सारे लोग कल को यूपीएससी पास करेंगे एंड दे विल ऑल्सो बिकम द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर बन जाओगे आप लोग भी. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज कलेक्टर्स और वी कैन से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कि दैट देयर शुड बी द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ. अब लॉ पास तो कर दिया उनने, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने मिलकर उनने बिल बनाया, फिर बिल गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने सिग्नेचर किए. अब सिग्नेचर के बाद वो लॉ गैजेट की बुक में, गैजेट में भी आ गया, और उसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास जा रहा है ताकि लॉ की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो. फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट. सबसे पहले एक बिल इंट्रोड्यूस होता है. बिल, प्रपोजल फॉर अ न्यू लॉ और टू अमेंड एन एक्सिस्टिंग वन. बिल क्या है? कोई आप नया लॉ लाना चाहते हो या पहले से ही कोई लॉ प्रेजेंट है उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, तो उस प्रपोजल को बोलते हैं हम बिल. बिल किसी भी हाउस में, भले लेजिस्लेटिव असेंबली हो या जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, उनमें इंट्रोड्यूस हो सकता है. दोनों में से किसी भी हाउस में बिल इंट्रोड्यूस होता है. देन इट, when it introduced in any of the house, then it goes to the other house for its approval. When other house will also approve the bill, then the bill is sent to the governor for his assent. Once governor signs it, it will become a law. So
it is in the hands of the MLA first to make or amend or ratify the laws. Then they will introduce a bill, then it will goes to any of the house. If both the houses will approve it, then bill will go to the governor for his assent. Once governor will sign, it will become a law. So this happens to become a law. Then when they all when this process happens, then it goes to the then it comes to the gazette, and after gazette it comes to the collector's office, to each and every district for the implementation of the particular law. There are some points which we have to remember regarding the function of the government is, as we know that our chief minister or ministers, they all are elected by the people of the state. So it is their so when they become the ministers, when they become chief minister, so it is their responsibility that they should always be accountable to people. They have to implement new laws related to, if there is a need to change in the procedure of or change in the laws regarding the agriculture, public work, law and order, revenue, or any department need ratification, then it is the duty of the government to ratify all those laws. Government is always answerable to opposition party in the assembly. If opposition party will raise question regarding the government, according the if they are working something and opposition party is saying कि आपको हमें आंसर देना पड़ेगा, why you did this, so government is answerable to them. Government cannot deny कि नहीं अभी हम आपको जवाब नहीं देंगे इसके ऊपर. They cannot deny this. They have to answer the opposition party in the assembly. भले उनके opposition party seats हैं उनके पास भी, they are less in number, but they have the right to ask them a question. Fourth, government is also answerable to media who question the actions of the government on behalf of the people, to which the government responds by holding press conference. तो भाई गवर्नमेंट जो है, मीडिया क्या है, इट्स वन ऑफ द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी. तो मीडिया अगर कोई क्वेश्चन करता है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो उनको भी आंसर करे. बिकॉज जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, सॉरी, गवर्नमेंट को अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कंडक्ट करवानी पड़ेंगी, ताकि वो प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर सके, ताकि वो पब्लिक के क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स कर सके. So in democracy, in a democracy, people elect their representatives, send them to the assembly. If people are unhappy with the working of the government, they can voice their displeasure and can demand a change in the laws. ये लोग ही हैं जिनके कारण they become the representative, because उन्होंने उनको चुना है, उन्होंने उनको असेंबली में भेजा है. अगर लोग अनहैप्पी होंगे उनके डिसीजन से, गवर्नमेंट की वर्किंग से दे आर नॉट हैप्पी, तो वो किसी भी टाइम पे अपनी रिजेंटमेंट शो कर सकते हैं. और वो लोगों को राइट है बोलने का दैट देयर इज अ नीड टू चेंज इन द लॉज. अगर लॉज में कुछ चेंजेस लानी है, लानी चाहिए. लोग पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं. दे हैव द राइट टू से all the things to the government. They have the right to question the government, and this is the beauty of the democracy, in which we can question our government. Yes, but there is a thing like we need, हमें गवर्नमेंट पे एलिगेशन नहीं लगाने हैं, we can only criticize them. कि कोई पॉलिसी अगर उनकी किसी पॉलिसी में कुछ कमी लगती है, वी कैन सजेस्ट देम, वी कैन से अगर इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से किया जाए, दैट वुड बी बेटर. सो दिस इज द रोल ऑफ द वी कैन से गवर्नमेंट एंड द पीपल्स टू. Thank you so much. Thank you so much for watching.